Who is to be blamed for all of this? Here's a report. When heat waves hit one of the world's coldest regions, you know something is not right. This is Siberia. 20 towns in the region are on fire. This is the Russian city of Yakutsk, also known as Yakutia. It is the world's coldest winter city. But this heat wave cooked its shellfish in the sea. Canada's forests are now being gutted to the ground. 2 weeks now. Over 157,000 hectares of land. It is due to greenhouse gas emissions, and here greenhouse effect, carbon dioxide in Earth's surface. Carbon dioxide is an important trace gas in Earth's atmosphere. It is an integral part of the carbon cycle, a biogeochemical cycle in which carbon is exchanged between the Earth, ocean and soil, rocks and biosphere. Plants and other photoautotrophs use solar radiations. Now, greenhouse gases in atmosphere absorb and emit infrared radiations. What are infrared? Sometimes called infrared light, is electromagnetic radiations. It is visibly spectrum around 700 nanometer. And slowing the rate at which it can pass through the atmosphere and escape into space. NASA, the cause of climate change, vital sign of the planet. And here, before the industrial revolution, naturally occur amount of greenhouse gases cast in air near the surface to be about 33 degrees Celsius, which are 59 degrees Fahrenheit, warmer than it would have been in their absence. To 25% are approximate, are the biggest contribution to the greenhouse effect. They increase as a function of temperature and human activity since the industrial revolutions. It is also very important. By the industrial revolutions, many countries burning fossil fuels like coal, oil, natural gas has increased the amount of greenhouse gases in the atmosphere, resulting in a radiative imbalance. In 2018, the concentration of carbon dioxide gas, methane increased by about 45% and 160% respectively. Since 1750, these carbon dioxide gas levels are much higher than they have been at any during the last 80,000 years. The period for which reliable data have been collected from air trapped in ice cores. Courseless direct geological evidence indicate that carbon dioxide value have not been this high for millions of years. Aerosol and cloud. Air pollution in the form of aerosols. What are aerosols? Aerosol is a suspension of solid particles or liquid droplet in air or another gas. Aerosols can be natural or anthropogenic. Example of natural aerosols are fog or mist, as you can see here. Dust, forest exhaust and geyser steam. Examples of anthropogenic aerosols are particulate or pollutant. Not only puts a large burden on human health but also affect the climate. Particulate, also known as atmospheric aerosol particles. Atmospheric particulate matter increase rainfall and have larger storm surges, but there might be fewer of them globally. These changes are driven by rising sea temperature and increased maximum water vapor content of the atmosphere. Climate change and ecosystem. How it affect? Climate change is adversely affected both terrestrial and marine ecosystem and is expected to further affect many ecosystems including tundra, mangrove, coral reef and caves. Increasing global temperature, more frequent occurrence of extreme weather and rising sea level are some other examples.
Extreme weather, drought and high temperature worsen 2020, bushfire in Australia, Arctic warming and habitat destructions of many Arctic animals which are really on the sea ice which has been disappearing in a warming Arctic. The effect of climate change on humans are far-reaching and include effect on health, environment, displacement, migration, security, society, human settlement, energy and transport. Warming and shift in precipitations have been detected worldwide. Regional impact of climate change are long-term significant change in expected pattern of average weather of specific region due to climate change. Food and health. It includes both the direct effect at extreme weather leading to injury and loss of life, as well as indirect effects such as undernutrition brought by the crop failures. Like as you can see here, malnutrition is a condition that results from eating a diet which does not supply a healthy amount of one or more nutrients. This includes diets that have too little nutrients or so many that diet causes health problems. The nutrients involved can include calorific, protein, carbohydrate, fat, vitamins. It impact on livelihood. Economic changes due to the climate change have been underestimated and may be severe with the probability of disastrous tail risk event. As you can see here, the black swan theory or theory of black swan event is a metaphor that describes an event that comes as a surprise, has a major effect and is often inappropriately rationalized after the fact with the benefit of hindsight. What are carbon sequestration? Carbon sequestration is the long-term removal, capture or sequestration of carbon dioxide from the atmosphere to slow or reverse atmospheric carbon dioxide gas pollution and to mitigate or reverse climate change. It is more relevant to our UPSC exam. वर्ष 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। कुछ समय पूर्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने 174 देशों के वर्ष 1960 के बाद जलवायु संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की स्थिति में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल के स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बता दें, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसे हम UNDRR के अनुसार कहते हैं, के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण हुई प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष 1998 से 2017 के बीच की समय अवधि के दौरान लगभग 8,000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो इसी समय अवधि में तकरीबन 3 लाख करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तत्वावधान में आयोजित COP25 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए। इस आलेख में जलवायु परिवर्तन के कारण उससे उत्पन्न चुनौतियों पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्या है जलवायु परिवर्तन? इसे हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या होता है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो यह इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं
कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तमाम तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और वहीं महासागरों का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गतिविधियां और दूसरा मानवीय गतिविधियां। अब हम एक नज़र देख लेते हैं प्राकृतिक गतिविधियां क्या। महाद्वीपीय संवहन। सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक ही बड़े धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, किंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए हैं। महाद्वीपीय संवहन अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय उपखंड का धीरे धीरे एशियाई महाद्वीप की ओर खिसकना माना जाता है। वहीं बात करें ज्वालामुखी विस्फोट की। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूल कण वायुमंडल में विसर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत संताप मंडल में जाकर फैल जाते हैं तथा पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाती हैं। वर्ष 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रीष्म ऋतु में जो अचानक ठंड आई थी, जिसे किलिंग समर फ्रॉस्ट कहते हैं, उसका कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए अनेक ज्वालामुखी विस्फोटों को भी माना जाता है। पृथ्वी का झुकाव दूसरा कारण। पृथ्वी के झुकाव का कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी, और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती हैं। वहीं बात करें समुद्री धाराओं की। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान रहता है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में 2 गुना सूर्य का प्रकाश का अवशोषण करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है, जिसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में भी होती हैं। समुद्री बहाव में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती हैं। अब हम एक बार नज़र दौड़ा देते हैं मानवीय गतिविधियाँ। शहरीकरण। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गांव में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में भी इनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहाँ के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण। जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकीकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मेले वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूलकण हवा में छोड़ती हैं, जो वहाँ वायुमंडल में काफ़ी वर्षों तक विद्यमान रहती हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकीकरण की ही देन है। वन उन्मूलन। निरंतर बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है। अब वहीं एक
देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन से प्रभाव क्या क्या है। वर्षा पर प्रभाव, समुद्री जल स्तर पर प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, हुआ और विकसित देशों Annex 1 में शामिल देश द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। COP25 क्या है? सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं। इसमें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौतों के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के क्या क्या प्रयास हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के लिए उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय मिशन, विकसित राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी दिक्कत की तरह है। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि सभी देश मिलकर इसके लिए काम करें, अन्यथा गलती चाहे किसी की हो, परिणाम सभी भुगतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इंसानों को विकास और प्रकृति के बीच में संतुलन बिठाना होगा। बेतहाशा किया जाने वाला भौतिक विकास आगे चलकर विनाशकारी ही साबित होगा। थैंक यू।